The tissue system. In the previous class, we have studied about all the tissues, including meristematic tissue and parenchymatous tissue. Okay, so can you explain me something about the previous class? How many types of meristematic tissues are there? Three types. Yes, and on the basis of position, you can you tell me on the basis of position how many meristematic tissues were there? Meristem, intercalated meristem, and lateral meristem. Okay, and on the basis of function, how many are there? Not remember. Okay, on the basis of function, three are there. Okay, so now today we are going to study about the tissue system. Function के basis पे ही तो tissue system develop हुआ था. Like on the basis of function, there were three kinds: vascular, those meristematic tissue which were involved in formation of vascular tissue system. Then those meristematic tissue which are involved in formation of epidermal tissue system, and those meristematic tissue which are involved in formation of ground tissue system. So there were three different kind on the basis of function of meristem. So now we are going to study those three different kind of tissues in detail. अब meristematic activity का काम हो गया. After that work of meristematic tissue, epidermal tissue system, ground tissue system, and vascular tissue system. Three kind of tissue system which we have to study. अब इसमें क्या है, इन आवर बुक डिफरेंट टिश्यू सिस्टम आर गिवन इन डिफरेंट हेडिंग्स. ठीक है, फिर उसके बाद अलग से दिया गया है इसमें मोनोकॉट रूट का, डाइकॉट रूट का, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ. सो ईच एंड एवरीथिंग अगर हम एक एक चीज को लेके पढ़ेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम. ठीक है, आफ्टर दिस if I am taking this one, epidermal tissue system, so along with this I will explain how this kind of tissue system is present in monocot root, dicot root, monocot stem, dicot stem. कहाँ किस तरह से arrangement है, we will continue to study likewise. Okay, we'll see. Any doubt कि किस तरह से we will going to study? You can in fact submit the question number also. Okay, so first we will start with epidermal tissue system. Epidermal tissue system itself is formed of three different kind: epidermis, epidermal appendages हैं और epidermal structures हैं. ठीक है, तो इसमें भी क्या है, अब epidermal appendages में root hair अलग आते हैं, stem hairs अलग आते हैं. तो we will study these things in separate कि ये epidermis roots में कैसे है, monocot root या dicot root में कैसे arrangement है, फिर root hairs कैसे arranged है, ये stem hair कैसे arranged है. ठीक है, then ground tissue system itself is a large one. It is covering the maximum mass of monocot or dicot stem, okay, and monocot or dicot root. तो जो मेजर पोर्शन है जिससे प्लांट का सेल या एनाटॉमी क्रिएट हुआ है, वो मेजर पोर्शन किसका है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का. ये इटसेल्फ डिवाइडेड है तीन मेजर पार्ट में: कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल एंड पिथ. सो व्हेन यू विल स्टडी द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ दीज थिंग, आई डोंट नो कि तुम्हारे स्कूल में कोई प्रैक्टिकल वगैरह कराया, इफ practical is there in the syllabus, if any school does this. So उसमें क्या होता है, बेसिकली एक ट्रांसफर सेक्शन, लोग बहुत थिन ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं, देन अंडर द माइक्रोस्कोप आफ्टर स्टेनिंग हम उसको पढ़ते हैं. तो उसमें भी ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या आता है, सबसे मेजर पोर्शन रहता है भारी, मतलब पूरा बल्क जो है वो टिश्यू सिस्टम का किससे बनता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से. आफ्टर दैट जो सबसे इजी बनाता है ये वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम. ये बहुत छोटा होता है इन द सेंटर. इसमें बस हम लोग क्या देखते हैं, जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट देखते हैं कि कहाँ किस तरह से अरेंज्ड है. इसमें क्या आ जाएगा, कॉन्जॉइन, कोलैटरल, रेडियल, इसमें ये सारा जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट रहेगा. ठीक, सो स्टार्टिंग विद दिस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम वी विल सी दिस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. देखो आउटर मोस्ट लेयर में, आउटर मोस्ट लेयर कैसे है, जब भी कोई टिश्यू या सेल स्टार्ट होगा फॉर्मेशन होना, देखो किसी भी प्लांट का सबसे ऊपर वाला लेयर क्या है, एपिडर्मिस. सो एपिडर्मल टिश्यू क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर. जब जो सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट लेयर होता है वो क्या हो जाता है, प्रोटेक्टिव हो जाता है नेचर में. तो सेकेंड हमेशा याद रखना कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आउटर मोस्ट लेयर है, एंड ड्यू टू इट्स बीइंग इन आउटर मोस्ट लेयर इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. अब आउटर मोस्ट लेयर है, और आउटर मोस्ट लेयर में हमने क्या देखा था कि जो पेरेंकाइमेटस सेल होते हैं लाइक हियर, वो क्या होते हैं, सिंपल होते हैं. पेरेंकाइमेटस सेल्स में बेसिकली क्या आता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा नहीं प्रेजेंट होते हैं, या किसी किसी में होते भी हैं. तो जो भी सेल होंगे लाइक ऐसे अरेंज होंगे अपने आप में. तो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो बना है वो किसका बना है, पेरेंकाइमेटस सेल्स है, जहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस देखो अभी किसी में आएगा, किसी में नहीं आएगा. तो ओवरऑल क्या है, इस वाले टिश्यू सिस्टम में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है. अब एपिडर्मल टिश्यू में सबसे पहले क्या आता है, एपिडर्मिस. तो एपिडर्मिस क्या है, सिंगल लेयर्ड है. क्या है,
इसमें कोई लेयरिंग नहीं है, ओनली जस्ट सिंगल लेयर इज प्रेजेंट, यू कैन सी इन द फिगर। ये क्या है, एक सिंगल लेयर है, जो पूरा क्या है, ये सिंगल लेयर दिखा रहा है किसका, एपिडर्मिस का, जो कि क्या है, द मोस्ट आउटर कवरिंग ऑफ एनी प्लांट बॉडी एंड इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में भी सबसे आगे कौन है, एपिडर्मिस। अब नो क्लोरोप्लास्ट है एक्सेप्ट एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, लीव्स में ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है फॉर द फूड सिंथेसिस। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ किसके एपिडर्मिस में होगा, लीव्स में होगा। एपिडर्मिस ऑफ रूट और एपिडर्मिस ऑफ स्टेम में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा। अब आते हैं हम लोग क्या, एपिडर्मिस ऑफ रूट, एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एंड एपिडर्मिस ऑफ लीफ। ठीक है, ये साइड बाय साइड आई विल शो यू द इमेज सो दैट इट कैन गेट मोर क्लियर। अब देखो रूट्स में क्या है, इन रूट्स नाम बदल जाता है, देखो एपिग्लेमा कह लो, राइजोडर्मिस कह लो, या पेलिफेरस लेयर कह लो। मोस्ट फेमस क्या है, ये पेलिफेरस लेयर है। इन रूट्स जब भी पूछा जाएगा मोस्ट फेमसली पेलिफेरस लेयर पूछा जाता है कि किस नाम से पुकारते हैं। ठीक है, एपिग्लेमा, राइजोडर्मिस आर सेकेंडरी नेम बट पेलिफेरस लेयर नेम मोस्ट फेमस है। देन इसमें क्या होता है, क्यूटिकल एब्सेंट होता है, और मेनली क्यूटिकल क्यों होता है, इफ क्यूटिकल कवरिंग इज देयर, तो क्यूटिकल का कवरिंग का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन बढ़ाना। और जब क्यूटिकल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन भी एब्सेंट हो जाएगा। सो रूट में ट्रांसपिरेशन का कोई काम ही नहीं है, ट्रांसपिरेशन को रोकने का कोई काम ही नहीं है, वो तो पानी एब्जॉर्ब करता है, अंडरग्राउंड है, दैट इज व्हाई क्यूटिकल इज एब्सेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। अब देखना ये स्टेम में प्रेजेंट होगा, देखो इमेज भी मैंने बनाया है। इसी एपिडर्मिस लेयर से रिलीज क्या होता है, रूट हेयर्स का रिलीज होता है, और ये रूट हेयर क्या होती है, यूनिसेलुलर इन नेचर। सो in all, epidermis of root is known by 3 different names. One is epiblema, other is rhizodermis, other one is piliferous layer. And this epidermis of root gives rise to the root hairs, and these root hairs are unicellular in nature. Then usually these epidermis of leaves are what, they are single layered and cuticle is absent. Why absent? Because there is no need to stop transpiration because they are underground. वहां पे वाटर का लॉस हो ही नहीं रहा है, they need to absorb water, इसीलिए क्या है, इसमें क्यूटिकल का काम नहीं है, that is why cuticle is absent in epidermis of root. अब जब एपिडर्मिस ऑफ स्टेम आएगा वहां पे क्यूटिकल का काम आएगा। देखो क्यूटिकल इज प्रेजेंट, क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि स्टेम से वाटर लॉस होता है, तो ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी क्या है, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में, सॉरी एपिडर्मिस ऑफ स्टेम्स में ये प्रेजेंट है क्या, क्यूटिकल। जस्ट गिव मी अ मिनट, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट। एपिडर्मिस ऑफ स्टेम ये क्या होता है, ये भी सिंगल लेयर्ड होता है। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये एक एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर्ड है। अब देखो जैसे इसके रूट हेयर्स में क्या था, यूनिसेलुलर थे, यहाँ पे देखो रूट हेयर्स में क्या है, मल्टी सेलुलर है, मतलब इसके अंदर भी क्या दिख रहा है तुम्हें, डिवीजन दिख रहा है, तो मल्टी सेलुलर। और इसके रूट्स को बेसिकली क्या बोलते हैं, ये स्टेम हेयर्स नहीं बोलते, यहाँ पे स्टेम हेयर्स ना बोल के क्या बोला जाता है, ट्राइकॉन्स। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टी सेलुलर सेल्स, ये क्या होते हैं, थोड़े थिक होते हैं रूट हेयर की कंपैरिजन में। ठीक है, देखो मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच और अनब्रांच भी हो जाएंगे, सॉफ्ट, स्टिफ, प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन में भी, सेक्रेटरी इन फंक्शन। ये सब किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, ये क्यूटिकल के वैक्सी कवरिंग के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। यहाँ पे क्या है, वैक्सी कोटिंग जो क्यूटिकल है, ट्रांसपिरेशन प्रिवेंट करता है, कहाँ पे प्रेजेंट है, एपिडर्मिस ऑफ स्टेम में प्रेजेंट है, एपिडर्मिस ऑफ रूट्स में एब्सेंट है। देन आता है क्या, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। देन 2 टाइप ऑफ लीव्स आर फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, जहाँ पे लोकेशन है। एक होता है क्या, एडैक्सियल, दूसरा होता है अबैक्सियल। एडैक्सियल मतलब जो ऊपर की तरफ होगा, लीव्स, लीव्स का 2 साइड है, तो जो ऊपर की तरफ है वो क्या है, एडैक्सियल वन है, और जो लोअर, like this one is what, adaxial one, and this one is what, abaxial one. So adaxial epidermis is what, upper epidermis, and abaxial epidermis is what, lower epidermis. And in dicot leaves, देखो adaxial कहाँ प्रेजेंट होता है, dicot leaves में है, एक्चुअली सब में ही होता है, dicot leaf, monocot leaf दोनों में ही देखा जाएगा। In dicot leaf, adaxial epidermis has thick cuticle. अब thick cuticle क्यों होगा, डाइकॉट लीफ अडैक्सियल में क्यों थिक होता है, क्योंकि ये सबसे ऊपर है, और सबसे ऊपर में क्या है, पानी जल्दी जल्दी ट्रांसपिरेशन का लॉस होगा। सो टू प्रिवेंट लॉस ऑफ मोर लॉस ऑफ वाटर कह सकते हैं, थिक क्यूटिकल इज प्रेजेंट इन द डाइकॉट लीव्स। लेकिन मोनोकॉट में क्या है, सॉरी डाइकॉट लीफ ऑफ स्टेम अबैक्सियल वाले में, इस वाले में थिन क्यूटिकल है। क्यों, क्योंकि ये लोअर सरफेस पे है, जब लोअर सरफेस पे है तो सन लाइट क्या है, डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, एंड ज्यादा वाटर लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, थिन क्यूटिकल है। ठीक, देन अगेन मोनोकॉट लीफ में क्या है, थिक क्यूटिकल, सेम वही चीज, ऊपर की तरफ है इसलिए थिक क्यूटिकल है, डाइकॉट लीफ हो चाहे मोनोकॉट लीफ हो। एंड मोनोकॉट लीफ अबैक्सियल एपिडर्मिस में थिक क्यूटिकल है। अब देखो मोनोकॉट लीफ जो सेल होते हैं, मोर और लेस दे आर आइसोबाइलेटरल इन नेचर, दे आर हैविंग सेम शेप, सेम साइजेस एंड लेस फंक्शनलिटी अगर बोला जाए तो उनके जो ऊपर नीचे का सेल है,
सेम वही चीज की उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। जब कोई डिफरेंस नहीं है तो जो मोनोकॉट लीफ होते हैं उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्यूटिकल थिक हो या थिन हो। तो मोनोकॉट लीव्स में अबैक्सियल में भी थिक है और एडैक्सियल में भी थिक है, ठीक है। लेकिन अगर डाइकॉट लीव्स का बात करें तो अबैक्सियल वाले में क्या है, थिन है, और एडैक्सियल वाले में क्या है, थिक है। यू कैन रिमेम्बर बाई जस्ट रिमेम्बरिंग ओनली वन पार्ट, चाहे एडैक्सियल याद कर लो चाहे अबैक्सियल। तो जो एडैक्सियल का होगा उसका अपोजिट सारा क्या हो जाएगा, अबैक्सियल वाला। तो तुम एक याद करके ये याद रख सकते हो कि थिक क्यूटिकल किसमें है और थिन क्यूटिकल किसमें है। ओके, नाउ अगेन इन डाइकॉट लीव्स एडैक्सियल एपिडर्मिस हैज नो स्टोमेटा। एडैक्सियल एपिडर्मिस के पास क्या है, स्टोमेटा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि थिक क्यूटिकल है। अब ज्यादा क्यूटिकल है तो स्टोमेटा, व्हेन स्टोमेटा गेट्स ओपन देन वाटर लॉस विल हैपन। तो जब थिक क्यूटिकल है तो स्टोमेटा जल्दी ओपन ही नहीं होगा, और मतलब स्टोमेटा है ही नहीं तो ओपन नहीं होगा। और फिर डाइकॉट लीव्स के अबैक्सियल सरफेस यानी कि लोअर सरफेस पे क्या होता है, नंबर ऑफ स्टोमेटा बहुत ज्यादा होते हैं। वहां पे ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, क्यूटिकल की कमी है, क्यूटिकल थिन है, और वहां पे इजिली वाटर जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो इजिली हो सकता है, ठीक है। दीज थिंग यू विल स्टडी इन डिटेल इन टीआईपी चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, बस इतना याद रख लो कि एक सरफेस पे यानी कि अपर सरफेस पे थिक क्यूटिकल है, स्टोमेटा कम है डाइकॉट लीव्स में और मोनोकॉट लीव्स में। एंड ये जो डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ लोअर सरफेस का बात हो रहा है उसमें क्या है, एक पे थिन है और एक पे थिक है, ठीक। नेक्स्ट वन अगेन वही चीज, इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा क्यों है मोनोकॉट लीफ पे एडैक्सियल सरफेस पे, क्योंकि दोनों का जो मोनोकॉट लीफ होता है वहां अरेंजमेंट शेप एंड साइज में इक्वल होता है, इसलिए स्टोमेटा का भी नंबर क्या है, इक्वल है। यहाँ पे भी सेम वही चीज, इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा मोनोकॉट लीफ में, एडैक्सियल अबैक्सियल दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मोनोकॉट में एडैक्सियल एपिडर्मिस गेट्स मॉडिफाइड इनटू लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स। दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड बोलीफॉर्म सेल्स। बोलीफॉर्म सेल्स की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, C4 प्लांट्स में ये लोग ज्यादा एबिलिटी दिखाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो C4 साइकिल चलता है वो ज्यादा क्या हो जाता है, स्टर्ड हो जाता है, ज्यादा स्टडी रहता है, ज्यादा क्या रहता है, अच्छा रहता है फॉर द प्लांट्स। तो मोनोकॉट्स में एडैक्सियल एपिडर्मिस होते हैं, एडैक्सियल एपिडर्मिस गेट्स मॉडिफाइड इनटू लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स। अब उस एम्प्टी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, बोलीफॉर्म सेल्स। ये क्या करता है, जहां भी पानी की कमी है वो सेल्स क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, यानी कि द सेल्स गेट कर्ल इनसाइड। इनवर्ड सेल्स को कर्ल करने की वजह से वाटर स्ट्रेस कंडीशन में दे प्रिवेंट वाटर लॉस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट, एपिडर्मिस, फर्स्ट लेयर ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इट इज एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस ऑफ रूट में क्या था, क्यूटिकल एब्सेंट था, एंड जो रूट हेयर रिलीज करते थे वो यूनिसेलुलर थे। एपिडर्मिस ऑफ स्टेम में क्या है, क्यूटिकल प्रेजेंट है। जो रूट स्टेम हेयर्स है वो क्या है, मल्टीसेलुलर है, और उनको बोला जाता है ट्राइकॉन्स। उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग जो क्यूटिकल की है वो क्या होती है, ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करती है, इसीलिए स्टेम में प्रेजेंट है। एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में क्या है, दो टाइप के हैं, एक एडैक्सियल यानी कि अपर एपिडर्मिस, दूसरा अबैक्सियल लोअर एपिडर्मिस। एक के रेफरेंस में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अपर एपिडर्मिस। डाइकॉट लीव्स का कैसा होता है, थिक क्यूटिकल रहेगा, एंड मोनोकॉट लीव्स में भी थिक क्यूटिकल रहेगा। एंड एडैक्सियल वाले में डाइकॉट लीव्स में स्टोमेटा क्या है, नहीं रहेगा, लेकिन लोअर सरफेस पे मोनोकॉट लीव्स में एडैक्सियल सरफेस पे स्टोमेटा इक्वल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे रहेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिडर्मिस। नाउ स्टोमेटा, स्टोमेटा we will see the detailed function and detailed structure of stomata in again transportation in plants chapter। यहाँ पे बस इतना देख लो कि it is a part of epidermis। epidermis के पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लाइक अगर हम लोग यहाँ फिगर बनाए लीव्स का, so leaf this is the outermost layer epidermis, और यहाँ पे क्या होता है, ये एपिडर्मिस के ऊपर क्या है, स्टोमेटा, ठीक है। तो इस स्टोमेटा की बात हम लोग कर रहे हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ एपिडर्मिस फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। अब दो ही तरह का, डाइकॉट और मोनोकॉट में कैसा है स्टोमेटा का अरेंजमेंट। तो डाइकॉट में ये जो स्टोमेटा है वो क्या है, बीन शेप्ड होते हैं, और मोनोकॉट में क्या है, डम्बेल शेप्ड होते हैं। सो हैव आई रिटन, ओके नहीं लिखा है, बट फ्रॉम द फिगर वी कैन ऑल्सो सी कि ये क्या है, डाइकॉट में स्टोमेटा आर बीन शेप्ड एंड मोनोकॉट में स्टोमेटा आर डम्बेल शेप्ड, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, जो ये स्टोमेटा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रेगुलेट्स व्हाट, वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड आल्सो वाटर लॉस। ओके, सो इट इज मेनली फंक्शन इन वेयर ट्रांसपिरेशन चैप्टर में। यहाँ पे स्टोमेटल पोर है, द सेंटर वन, ये वाला, ये स्टोमेटल पोर है, ओके। एंड डाइकॉट वाले में यू कैन सी
this stomatal pore has inner wall is having thick lining. See, these are thick lines and outer wall is having thin line. देखो ये outer wall क्या है, ये क्या है, thin line है. ये outer wall is having thin line, inner wall is having thick lines. ऐसे तो stomatal pore भी क्या है, दो तरह से है. कहाँ पे, डाइकॉट वाले में. डाइकॉट वाले में इनर पोर में स्टोमेटल जो पोर है वो थिक है और आउटर वाला क्या है, थिन है. ठीक, अब ये जो सेल्स हैं, जो इनर का स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स. ये वाले जो सेल्स हैं यहाँ पे, ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं. एंड दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्या है, स्टोमेटा पे ही प्रेजेंट होते हैं. एंड ये जो क्या कहलाते हैं, सब्सिडियरी सेल्स कहलाते हैं, ये वाले. इसके अंदर ये जो मेन है, ये ग्रीन कलर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं गार्ड सेल्स. और गार्ड सेल्स का ओपनिंग ही क्या होता है, फ्लैसिडिटी और टर्जिडिटी क्रिएट करता है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग. इफ यू हैव सीन रेजिन्स, उसको पानी में रखते हैं तो क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है. फिर उसको सुखा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है. सो द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द गार्ड सेल्स हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ठीक है, गार्ड सेल्स में जब पानी अंदर आएगा, इट विल गेट ओपन एंड स्टोमेटल पोर जहां ओपन होगा वहां से ट्रांसपिरेशन लॉस होगा. ओके, एंड गार्ड सेल्स से जब पानी बाहर जाएगा तब क्या होगा, सेल्स का कंडीशन फ्लैसिड हो जाएगा एंड स्टोमेटल पोर विल गेट क्लोज. ओके, सो द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वाटर कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटल पोर. ओके, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि गार्ड सेल्स अगर ओपन होंगे तो क्या होता है, टर्जिडिटी क्रिएट होता है. क्यों, क्योंकि जब गार्ड सेल्स ओपन रहेंगे तो वाटर का एंट्री होगा, और जब गार्ड सेल्स क्लोज रहते हैं तो फ्लैसिड कंडीशन होता है, क्योंकि वाटर लॉस होता रहता है. यू कैन से कि गार्ड सेल और स्टोमेटल पोर का जो कनेक्शन है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. देन स्टोमेटल पोर, अगेन आई हैव एक्सप्लेन दिस वन. स्टोमा, आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल, जो कि थिन होता है. इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल क्या है, थिक है. So stomatal apparatus, this question has been asked. What includes in the stomatal apparatus? So stomatal pore, guard cell and subsidiary cells. All these three together are called as stomatal apparatus. Okay? Any doubt in the stomata part? Stomata क्या होता है और मोनोकॉट और डाइकॉट में कैसा अरेंज्ड है? Any doubt? मोनोकॉट एंड डाइकॉट में कैसे अरेंज है, इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. Okay. So in monocot सबसे पहले देखो शेप कैसा होता है. डाइकॉट में स्टोमेटा का शेप डम्बेल शेप है एंड मोनोकॉट में स्टोमेटा का शेप, अरे उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी. डाइकॉट में स्टोमेटा का शेप है बीन शेप्ड और या किडनी शेप्ड. ओके, एंड इन मोनोकॉट दे आर अरेंज्ड इन डम्बेल शेप. फिगर से ही दिख रहा है. फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट इट डाउन. देन अगेन these subsidiary cells are what, they are accessory cell. They are we can say modified epidermis. किसके लिए, covering of stomata. Stomata पे cover किया हुआ है. Then next point, these green structures are called as guard cells. The opening and closing of this guard cell only regulates what, the opening and closing of the stomata. Okay, so जब भी ये guard cells में water की entry होगी, इट विल गेट ओपन. दोनों के रिस्पेक्ट में बात हो रही है. सिर्फ एक ही डिफरेंस डाइकॉट और मोनोकॉट स्टोमेटा में है कि यहाँ पे क्या होता है, गार्ड सेल्स डम्बेल शेप में होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, गार्ड सेल्स बीन शेप्ड. अदरवाइज ऑल एंड ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीव्स सेम. ठीक है, स्टोमेटा जहां जहां भी रहेगा. अगेन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है दोनों के स्टोमेटल पोर पे. स्टोमा क्या है, आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल, ये इसको क्या बोल रहे हैं, स्टोमा बोल रहे हैं. और ये क्या है, थिन होता है. इनर वॉल क्या है, थिक है, ये वाला वॉल. और किस कहाँ थिक है, डाइकॉट वाले में थिक है. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इनर वॉल और आउटर वॉल थिक थिन है. ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पे, इनर वॉल. हाँ बस इतने ही है, मोटा मोटा 4 मेन पॉइंट्स हैं. डाइकॉट स्टोमेटा आर हैविंग bean shaped guard cell. Monocot stomata are having dumbbell shaped guard cells. Then the dicot stomata have inner guard cells are thin and outer guard cells are thick. Ulta bol diya, I think. Yes, sorry. The inner wall of the guard cells are thick in dicot ones and outer wall of the guard cells are thin in the dicot ones. Whereas in the monocot there is no such thing as thinness or thickness. Okay. Next point you can write the subsidiary cells. Subsidiary cells are specialized modified cells of epidermis which are surrounding the stomata. Next point you can write about the chloroplast. These chloroplasts are present on the cells of stomata. Okay.
And then another point you can write guard cells, the closing and opening of guard cells are controlled by the inward and outward movement of water, and due to which it regulates what? The opening and closing of stomata. So, if you want, I can write all these points. It is given in slide also. This point is main, that is why I am writing inward and outward movement of water creates the guard cells to become turgid and placid, which ultimately regulates opening and closing of stomata. Okay. Now, any doubt? Epidermal tissue system contains epidermis and stomata, and mainly epidermis का part ही है stomata. So these are all about this epidermal tissue system. What are the function? Now I am going to tell. Yes. Any doubt in this monopod and dipod stomata? No, ma'am. ओके सो व्हाट आर द फंक्शन? देखो सबसे पहला फंक्शन तो ये हो जाएगा क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है इसलिए प्रोटेक्शन. देन जो ट्राइकॉम्स होते हैं डाइकॉट स्टेम्स में, वो क्या है? सीक्रेटिव इन नेचर है, तो वो सीक्रेशन का काम ही करते हैं. अब गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है. देन अभी हमने देखा कि क्यूटिकल इज प्रेजेंट, सो कंट्रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा? कुछ हद तक फंक्शन में आएगा किसके? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के. देन नेक्स्ट वन इज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय रूट हेयर्स, बिकॉज अभी हमने देखा रूट हेयर्स में भी क्या है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ही है. तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ऑल इन ऑल हेल्प्स इन व्हाट? गैसेस एक्सचेंज, प्रोटेक्शन, secretive in nature and absorption of water and minerals. Okay, एक एक पार्ट का अगर देखोगे you will be able to write each and every function, क्योंकि अगर पार्ट की बात करें तो गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा की वजह से हो रहा है, रूट हेयर ही वाटर एंड एब्जॉर्प्शन करेंगे, एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, फिर स्टेम का जो ट्राइकॉम्स है वो क्या है? सीक्रेटिव इन नेचर है. सो ईच एंड एवरी फंक्शन इज written down here. Any doubt in this epidermal tissue system? This one, let me show you with the diagram also. See, ये दिख रहा है पहला वाला लेयर, ये जो लाइन है ये यूनिसेलुलर सिंगल लेयर है, ये वाली लाइन देखो. अभी मैंने क्या बताया? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इन डाइकॉट रूट, एपिब्लेमा के नाम से जाना जाता है, या फिर राइजोइड्स या पेलिफेरस लेयर्स. ओके, अब इसके ऊपर जो रूट हेयर्स है वो क्या है? यूनिसेलुलर है. ये क्या है? रूट हेयर्स, जो कि क्या है? यूनिसेलुलर है. अब मोनोकॉट में देखते हैं, सेम वही चीज है, एपिब्लेमा है, रूट हेयर, ये भी क्या है? यूनिसेलुलर. नेक्स्ट वन इज डाइकोटिलेडनस स्टेम, ये भी क्या है? देखो यूनिसेलुलर है. एपिडर्मिस जो लेयर है इसके अंदर देखो ये जो ट्राइकॉम्स है, द फिगर इज नॉट दैट मच क्लियर. सो यहाँ पे भी क्या है? छोटे छोटे सेल्स में डिवीजन है ऐसे करके, फिगर क्लियर नहीं उतना. सो ये भी क्या है? स्टेम हेयर्स या तो ट्राइकॉम्स, मल्टी सेलुलर होते हैं ट्राइकॉम्स, मल्टी सेल्यूलर, सेम एज विद मोनोकॉट स्टेम. एपिडर्मिस देखो यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम में मोनोकॉट स्टेम में ज्यादातर चीज तुम्हें एब्सेंट ही दिखेगी. तो यहाँ है स्टेम हेयर्स एब्सेंट है, स्टेम हेयर्स एब्सेंट होते हैं. ठीक है, सिर्फ क्या है? ओनली फर्स्ट सिंगल लेयर एपिडर्मिस इज प्रेजेंट. नेक्स्ट डाइकोटिलेडनस रूट, यहाँ पे भी देखो एपिडर्मिस क्या है? फर्स्ट सिंगल लेयर है. यहाँ देखो दोनों की तरफ है, ऊपर की तरफ भी है, लोअर की तरफ है. अबैक्सियल एपिडर्मिस और एडैक्सियल एपिडर्मिस, ये क्या है? अपर वन, ये क्या है? लोअर वन. नेक्स्ट मोनोकॉटिलेडन्स में भी देखो सेम, एडैक्सियल एपिडर्मिस और अबैक्सियल एपिडर्मिस, ये अगेन वही चीज, अपर एंड लोअर. First layer we have completed, यानी कि first tissue system we have completed. Now we will see, okay, tissue system. We will see this ground tissue system. Epidermal is completed, I guess. The ground tissue system. Just in the beginning I have told you it is what? Fundamental tissue system. It forms main mass or main bulk of the plant body. ज्यादातर के plant body किससे भरा हुआ है? ground tissue system से. क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? पेरिसाइकिल है, पिथ है, मेडुलरी रेज है, कॉर्टेक्स है. कॉर्टेक्स आर कवरिंग द मेजर पार्ट ऑफ एनी प्लांट टिश्यूज. ओके, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो, कॉर्टेक्स मेजर पार्ट होता है. ओके, रूट में कॉर्टेक्स एब्सेंट होता है बट पेरिसाइकिल और पिथ प्रेजेंट होता है. एक्सेप्ट देखो एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, रेस्ट आर ऑल द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. यहाँ फिगर से समझो, देखो सिर्फ ये वाला पार्ट, ये जो हम लोग इतने बड़े में दिखा रहे हैं बहुत छोटा होता है. तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट छोड़ के देखो, ये भी क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ये भी क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ये वाला भी ग्राउंड टिश्यू, ये यहाँ जितने भी चीज हैं ये क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है. तो मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज कवर्ड बाय व्हाट? Major part of the plant body is covered by ground tissue system. And ground tissue system क्या क्या include कर रहा है? Cortex,
और कॉर्टेक्स में ये देखो अभी इसके अंदर आएगा क्या, दिस वन इज ऑल्सो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये क्या है पेरिसाइकिल है, ये ब्राउन वाला लेयर। अब पेरिसाइकिल के अंदर देखो ये वाला जो पिक है ये भी क्या है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। और जो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है मोनोकॉट 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 मोनोकॉट, हाँ देखो यहाँ पे देखो मोनोकॉट स्टेम में इफ यू सी, तो ये सेंटर से जो ये गया है ना वैस्कुलर बंडल्स के बीच का भी जो डिस्टेंस है ये क्या है रेज है, दीज आर मेडुलरी रेज। ये मेडुलरी रेज भी क्या है ground tissue system. So major part of the plant body is covered by this ground tissue system. Understood? Ground tissue system कितना मेन है? Now 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ। तो हम लोग रूट और स्टेम में साइमल्टेनियसली कंपेयर करते चलेंगे कि रूट में क्या है, स्टेम में क्या है, कैसे है। ठीक है, फिगर के साथ साथ हम लोग देखते चलेंगे। टिश्यू सबसे पहला लेयर कॉर्टेक्स, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सबसे पहला लेयर क्या है कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट। One is hypodermis, another is general cortex, and the third one is endodermis. So रूट में हाइपोडर्मिस यानी कि जो प्रोटेक्टिव कवरिंग सबसे पहला वाला है वो एब्सेंट है। ठीक है, जनरल कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, इंडोडर्मिस प्रेजेंट होगा, लेकिन रूट में हाइपोडर्मिस एब्सेंट होगा। देखो कहीं पे भी कॉर्टेक्स में हाइपोडर्मिस लिखा है, सिंपली क्या लिखा है कॉर्टेक्स लिखा है, हाइपोडर्मिस नहीं लिखा है। देखो इंडोडर्मिस दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हाइपोडर्मिस नहीं दिख रहा है। ये क्या है जनरल कॉर्टेक्स है, दिस वन इज डायरेक्टली जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पे भी मोनोकॉट रूट में भी देखो इंडोडर्मिस लिखा है, कॉर्टेक्स लिखा है, हाइपोडर्मिस नहीं लिखा है, तो ये जनरल कॉर्टेक्स है। हाइपोडर्मिस रूट में एब्सेंट है, यानी कि द फर्स्ट लेयर एब्सेंट है। स्टेम में तुम्हें दिखेगा, अभी लेट मी शो यू। सो हाइपोडर्मिस होता कैसा है, प्रोटेक्टिव नेचर है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है इंडोडर्मिस के बाद का लेयर है, तो ये भी क्या है प्रोटेक्टिव फंक्शन में करता है। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करेगा तब जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, सिंगल भी हो सकता है और मल्टीलेयर भी हो सकता है। तो डाइकॉट स्टेम में कोलिनकाइमेटस सेल्स का बना है और मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमेटस। यहाँ देखो मोनोकॉट स्टेम, ये जो मेजर पोर्शन ये देख रही हो ना, दिस वन इज जस्ट वन सिंगल पार्ट, एक सिंगल पार्ट को हमने लिया है which we are studying in enlarged version. So यहाँ पे मुझे क्या दिखाना था, yes, ये जो हाइपोडर्मिस है मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम में, this one is डाइकॉट स्टेम में, yes. So the मोनोकॉट में जो डाइकॉट स्टेम में जो ये हाइपोडर्मिस का पार्ट है कोलिनकाइमा का बना है। और कोलिनकाइमा कैसे नेचर में होता है, वी हैव सीन कॉर्नर थिकनिंग्स होती हैं, हार्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इफ यू कैन सी इन अ फिगर, जितना जूम हो सकता है, यहाँ पे देखो कॉर्नर ब्लैक ब्लैक थिकनिंग है। ठीक है, ये देखो यहाँ ये थिकनिंग, ये थिकनिंग, ये सारी थिकनिंग क्या है, ब्लैक थिकनिंग्स आर देयर। सो व्हिच मींस इट इज प्रूविंग कि क्या किससे बना है, कोलिनकाइमा लेयर का बना है। तो डाइकॉट स्टेम में the hypodermis is made up of cholincymatous cells, okay, and in monocot stem the hypodermis is made up of sclerenchymatous cells. यहाँ पे फिर से देखो हाइपोडर्मिस, यहाँ तो जूम आउट करके दिखा भी नहीं है ओके, यहाँ पे जूम आउट करके नहीं दिखा है। लेट मी सर्च अनदर डायग्राम, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट। We are studying this monocotyledonous. I think this one is much better version. So I was teaching you what the layer. देखो यहाँ पे जैसे ये ऐसा वाला लेयर जहाँ दिख जाए ना कि एक डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा है, that itself means कि ये क्या है स्क्लेरेनकाइमेटस लेयर है। किसका डिपोजिशन होता है स्क्लेरेनकाइमेटस में, लिग्निन का। तो here is the deposition of lignin, और ये टाइप के जितने भी सेल्स हैं ये वाले, ये क्या है हाइपोडर्मिस। So hypodermis of monocot stem is made up of sclerenchymatous cells and hypodermis of dicot stem is made up of cholincymatous cells. Have you understood this much? थोड़ा सा confusion है, if you will learn it you will be able to understand. So cortex के पार्ट का है hypodermis and hypodermis root में completely absent होता है, स्टेम में प्रेजेंट होता है, डाइकॉट स्टेम में कोलिनकाइमेटस सेल्स होते हैं एंड मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। एनसीईआरटी का जो फिगर है वो इतना क्लियर नहीं है, दैट इज व्हाई आई हैव चोजन अ मोर इलैबोरेट डायग्राम्स। ओके, सो इन इलैबोरेट डायग्राम्स में कोलिनकाइमेटस सेल्स कैसे होते थे, थिकनिंग्स होती थी। तो इन द फिगर यू कैन सी द थिकनिंग्स, फिगर से भी यू कैन अंडरस्टैंड कि डाइकॉट स्टेम में कोलिनकाइमेटस सेल्स होते हैं एंड मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। कौन, हाइपोडर्मिस का लेयर। अब आता है क्या, जनरल कॉर्टेक्स। नाउ जनरल कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट इन रूट आल्सो एंड इन द स्टेम आल्सो। तो इन रूट्स, चाहे वो मोनोकॉट रूट हो चाहे वो डाइकॉट रूट हो, वो किसका बना है, पेरेनकाइमेटस लेयर्स का बना है, मतलब कि सिंपल ऐसा वाला लेयर होगा, ऐसे होगा सिंपल बस। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। एंड डाइकॉट स्टेम में क्या है, पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना है सेम,
दोनों का सेम है। देखो मोनोकॉट स्टेम में ज्यादातर चीज तुम्हें एब्सेंट ही दिखेगी, ठीक है। मोनोकॉट स्टेम में क्या है, एब्सेंट होता है जनरल कॉर्टेक्स। नाउ कमिंग टू द इंडोडर्मिस, ये क्या है, इंडोडर्मिस टिश्यू के बाद का जितना लेयर है, यानी कि पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेस, ये सब क्या कहलाता है, स्टीली कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टीली। समटाइम्स डेफिनेशन ऑफ स्टीली has been asked कि what is stele. So all the tissues which are beneath endodermis are called as stele. It includes what, pericycle, pith, medullary race, etc. Okay, और ये सब क्या है तो किसका पार्ट, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का ही, लेकिन उसको अलग से नाम दे दिया गया स्टीली। इंडोडर्मिस क्या है, रूट्स में कैसा है, डिस्टिंक्ट है, क्लियर है, बैरल शेप्ड। हैव यू सीन दिस बैरल, सिलिंड्रिकल शेप का ही होता है, बट बैरल में क्या होता है, थोड़ा सा बीच में क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो बैरल शेप्ड होते हैं। कहाँ पे, रूट्स में। इंडोडर्मिस आर फाउंड बैरल शेप्ड, अगेन दे आर पेरेन्काइमेटस इन नेचर। अब देखो एक ये क्वेश्चन आता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का। What are Casparian strips? Casparian strips are those kind of cells which are found inside the cells of, या which are layering found inside the cells of endodermis. Endodermis के ऊपर क्या होता है, Casparian strips होती हैं, अंदर कह लो या ऊपर कह लो, ठीक है। तो ये Casparian strips का काम क्या होता है, प्रिवेंट वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जहां जहां Casparian strips रहेगा वहां पे सुबेरिन का डिपोजिशन रहेगा। अब सुबेरिन क्या होती है, लाइक ये बहुत मोटी लेयर होती है। अब जब मोटी लेयर है तो क्या हो जाएगा, कवर कर लेगा पूरे सेल्स को, तो यहाँ से क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है। सो फॉर दैट, अब जब वाटर ट्रांसपोर्टेशन ही बंद हो जाएगा तो पानी कैसे जाइलम का काम करेगी, जाइलम अपना काम कैसे कर पाएगी। सो फॉर दैट पर्पस some cells leave out these Casparian strips and those cells are called as passage cells or path cells. ये path cells भी लिख सकती है, path cells, ठीक है। So passage cells or path cells are present in the endodermis of roots. Okay, and Casparian strips are the cells which are found in the layer of endodermis and they are having suberin present in them. Due to this presence of suberin, water transport activity is stopped or not able to performed, yeah, not able to transport the water. For that, another cell is there which has these cells are called as passage cell or path cells. Okay, अब endodermis dicot stem में कैसे है, देखो endodermis is called as starch sheath और ग्रेन शीट, ठीक है। स्टार्च शीट या स्टार्च ग्रेन कहते हैं। डाइकॉट स्टेम में वेल डेवलप नहीं होते हैं बट वेल डेवलप नहीं होते हैं। मोनोकॉट स्टेम में कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। फ्रॉम द फिगर आल्सो, लेट मी शो यू फ्रॉम द फिगर डाइकॉट इंडोडर्मिस, देखो सीधे सीधे लेयर के बने हैं, देखो एकदम सिंपल लेयर्स के बने हैं। तो ये क्या है, पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं। अब इसमें मोनोकॉट इसमें भी देखो सिंगल लेयर है, मल्टी सेलुलर लेयर कोई भी हो सकता है। तो इंडोडर्मिस मोनोकॉट ग्रुप में क्या है, सिंगल लेयर दिख रहे हैं। देन डाइकॉट स्टेम में इंडोडर्मिस यहाँ है, और ये देखो यहाँ पे इंडोडर्मिस क्या है, जोन में मैंने, यानी कि सिंगल टू मल्टी सेलुलर लेयर्स हैं, वेल डेवलप नहीं होते, वेल डिस्टिंग्विश्ड नहीं होते, ठीक है। कहाँ खत्म हो रहा है कहाँ शुरू हो रहा है कुछ नहीं दिख रहा है। देखो इसी के नीचे इसी वाले में पेरिसाइकल भी दिख रहा है, तो वेल डिस्टिंग्विश्ड नहीं है। एंड मोनोकॉट वाले में एब्सेंट हो जाएंगे, यहाँ पे कोई वही नहीं है, देखो लेवलिंग ही नहीं है एपिडर्मिस का, सॉरी इंडोडर्मिस का लेवलिंग नहीं है। सो दिस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये पार्ट खत्म होता है। कॉर्टेक्स में 3 पार्ट, हाइपोडर्मिस कंप्लीटली एब्सेंट इन रूट एंड इन स्टेम, डाइकॉट में पोलेनकाइमेटस लेयर का होता है और मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमेटस लेयर का होता है। सेकंड पार्ट जनरल कॉर्टेक्स, दोनों में ही प्रेजेंट है, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट दोनों में ही पेरेन्काइमेटस लेयर का होता है, और डाइकॉट स्टेम में होता है पेरेन्काइमेटस लेयर और मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट, ठीक। फिर आता है इंडोडर्मिस, सबसे इनरमोस्ट लेयर है किसका, कॉर्टेक्स का। ये क्या होता है, रूट्स में वेल डेवलप्ड होता है, बैरल शेप्ड होता है, और इन्हीं में क्या पाए जाते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स और पैसेज सेल। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में सुबेरिन डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए पैसेज सेल्स क्रिएट होते हैं या पाथ सेल्स होते हैं इंडोडर्मिस की लेयर में। अगेन डाइकॉट स्टेम में इंडोडर्मिस इज प्रेजेंट बट नॉट वेल डेवलप्ड, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से खत्म हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। मोनोकॉट स्टेम में इंडोडर्मिस का जो लेयर है वो कंप्लीटली एब्सेंट है, यानी कि जनरल कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस दोनों ही एब्सेंट हैं, कहाँ पे, मोनोकॉट स्टेम में। नेक्स्ट कम टू स्टीली का जितना पार्ट है। स्टीली क्या था, ऑल द टिश्यूज विच आर बीनीथ द इंडोडर्मिस, इंडोडर्मल सेल्स। ओके, तो क्या क्या आएगा, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस या मेडुला या पिथ। नाउ पेरिसाइकल क्या है,
आउटर मोस्ट टिश्यू है किसका, स्टीली का। इंडोडर्मिस के बाद स्टीली स्टार्ट होता है, तो स्टीली का सबसे आउटर मोस्ट टिश्यू क्या है, पेरिसाइकल है। अब ये भी क्या हो सकता है, इन सम सेल्स इट इज सिंगल लेयर्ड एंड इन अदर काइंड ऑफ सेल्स इट कैन बी मल्टीसेलुलर आल्सो। इसका मेन फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड स्टोरेज ऑफ फूड्स। अब देखो डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में कैसे अरेंजमेंट है या डाइकॉट स्टेम में कैसे अरेंज है। फ्रॉम द फिगर आल्सो आई विल शो यू। डाइकॉट रूट में पेरिसाइकल गिव राइज टू लैटरल रूट्स, जो रूट ऐसे होते हैं ना, जो दिखेगा ऐसे लैटरल रूट्स जो राइज होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, डाइकॉट रूट्स में पेरिसाइकल के थ्रू, ठीक है। और जब सेकेंडरी ग्रोथ परफॉर्म करेगा रूट, we will study in the later part of the chapter कि सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होता है। सेकेंडरी ग्रोथ इफ यू हैव सीन लाइक बनियान ट्री, ठीक है, तो उसका रूट्स क्या होता है, बहुत चौड़ा चौड़ा और मोटा मोटा होता है। वो किसकी वजह से होता है, पेरिसाइकल क्या करता है, कैम्बियम में हेल्प करता है एंड सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली वहां पे होता है, ठीक है। मोनोकॉट रूट में पेरिसाइकल सिर्फ लैटरल रूट का फॉर्मेशन करता है, दोनों ही पेरेंकाइमेटस लेयर्स के होते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, ठीक। कमिंग बैक टू द मोनोकॉट स्टेम, अगेन एब्सेंट। डाइकॉट स्टेम में दो तरीके के होते हैं, हेट्रोजीनस इसीलिए लिखा है मैंने। दो तरीके के क्या होते हैं, आधे स्क्लेरेंकाइमेटस दिखेंगे तुम्हें और आधे पेरेंकाइमेटस। लेट मी शो यू फ्रॉम द फिगर देन यू विल अंडरस्टैंड। डाइकोटिलेडनस स्टेम, ठीक है। बात हो रहा है किसका, पेरिसाइकल का। सो यहाँ पे जो पेरिसाइकल होते हैं, स्टिल दिस फिगर इज नॉट वेरी क्लियर। तो इस पेरिसाइकल में जितना भी लेयर है ना, तो कुछ कुछ क्या होते हैं, स्क्लेरेंकाइमेटस के होंगे और कुछ कुछ क्या हो जाएंगे, पेरेंकाइमेटस। और पेरेंकाइमेटस कहाँ वाले होंगे पता है, यहाँ वाले तो स्क्लेरेंकाइमेटस होंगे ऊपर तरफ के। जो ये इस वाले फिगर से देखो, जो यहाँ वेस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होगा ना, इसके बीच में जो जो होगा पेरिसाइकल वाला जितना भी टिश्यू, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पेरेंकाइमेटस। और जो ये वाला होगा दिस काइंड वाला, ये इधर वाला, ये सारे क्या हो जाएंगे, स्क्लेरेंकाइमेटस। So the pericycle in dicot stem is heterogeneous, made up of two kind of cell. Half of the cell is sclerenchymatous and half of the cell is parenchymatous. Okay? कहाँ पेरेंकाइमेटस होगी, जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो पेरिसाइकल मिलेगा वो तुम्हें पेरेंकाइमेटस मिलेगा, और जो ऊपर की तरफ इंडोडर्मिस के नीचे मिलेगा वो काइंड ऑफ पेरिसाइकल स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स का बना होगा। ओके, अंडरस्टूड दिस मच? इतना समझ में आया कि पेरिसाइकल कहाँ और किस लेयर में किस किस तरह से बना है। When you will study this in practical and then you will be able to understand it more. तो अभी सिर्फ इमेजिनेशन और डायग्राम से ही काम चलाना पड़ेगा। ओके, द थर्ड पार्ट ऑफ जनरल टिश्यू सिस्टम या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज पिथ और मेडुला, ठीक है। यही पिथ से ही क्या होता है, मेडुलरी रेज अराइज होते हैं, इसलिए हम लोग पिथ और मेडुला दोनों साथ में ही बोलते हैं, ठीक। पिथ और मेडुला किसका होता है, पेरेंकाइमेटस सेल्स होता है, इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में ही मिलेगा। अब देखो डाइकॉट रूट में कैसा अरेंजमेंट है, नॉट वेल डेवलप्ड, स्मॉल या इनकनफाइटस कहते हैं, यानी कि डाइकॉट रूट में पिथ इज नॉट डेवलप्ड एट ऑल। अगर मिलेगा भी तो बहुत छोटा मिलेगा, यानी कि वेरी स्मॉल, इनकंस्पिक्यूअस इन साइज। लेकिन मोनोकॉट रूट में देखो लार्ज मिलेगा, वेल डेवलप्ड रहता है। अब यही चीज सेम डाइकॉट स्टेम में वेल डेवलप्ड मिलेगा और मेडुलरी रेज मिलेंगे। मेडुलरी रेज क्या होती है, वही सेम चीज, जो पिथ का एक्सटेंशन जाता है इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल, उसको हम लोग बोलते हैं मेडुलरी रेज। अगेन मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होता है। फ्रॉम द फिगर आल्सो यू कैन सी डाइकॉट रूट में देखो पिथ जो है ये कितना छोटा सा एरिया में है, बस इतने में ही है, और इतने में ही क्या है, डाइकॉट रूट में पिथ दिख रहा है, ठीक है। इसलिए वेरी स्मॉल, इनकंस्पाइकुअस है, नॉट वेल डेवलप्ड है। अब मोनोकॉट रूट में देखते हैं, देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, लार्ज है, वेल डेवलप्ड है। सेम डाइकॉट स्टेम में देखो पिथ अगेन लार्ज है, बड़ा है, इतना बड़ा, इसके साथ साथ क्या है, इस वेस्कुलर बंडल्स के बीच में भी है ऐसे। सो ये रे क्या है, पिथ का ही डेवलपमेंट है, एक्सटेंशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेड्युलरी रेज। और मोनोकॉट रूट में सिंपली इट इज एब्सेंट, देखो कहीं दिख ही नहीं रहा है, ये क्या है, एब्सेंट है। तो पिथ इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम, and in dicot stem it is very large, and extension of this large pith is called as medullary rays in dicot stem. And in dicot root pith is very small, inconspicuous, and in monocot root pith is very large and well developed. So any doubt in this ground tissue system? अभी सिर्फ रूट और स्टेम के रिस्पेक्ट में हमने बात की है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का, अभी लीफ का नहीं पूछा है। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू स्टेम एंड रूट, 3 layers are present: cortex, pericycle and pith. Cortex itself is divided into 3 different kinds. कौन कौन से 3 different kinds थे, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद सेकेंड लेयर था
second layer is what? Let me remember. Pericycle. And the third layer is what? No, not pericycle. Second layer is what? Okay, general cortex. That is why. Yeah, hypodermis, general cortex और general cortex के बाद क्या है नीचे? तीसरा layer endodermis. ठीक है. So this hypodermis in root again is absent. और stem में डाइकॉट स्टेम में है अलग सेल्स का बना हुआ, मोनोकॉट स्टेम में अलग सेल्स का बना हुआ. डाइकॉट स्टेम में यू विल बी फाइंड इट इज फॉर्म ऑफ कोलिनकाइमा और मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमेटस. ठीक है. नाउ जनरल कॉर्टेक्स में पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है. रूट में दोनों ही रूट, मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों रूट में पेरेनकाइमेटस सेल्स. डाइकॉट स्टेम में पेरेनकाइमेटस सेल्स, मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट. अगेन एंडोडर्मिस क्या है? डिस्टिंक्ट होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट रूट दोनों में पेरेनकाइमेटस सेल्स के बने होते हैं. स्टेम में क्या आ जाएगा? डाइकॉट स्टेम में नॉट वेल डेवलप्ड. ठीक है. कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से खत्म नहीं दिखता है. मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट है. देन पेरिसाइकल फर्स्ट लेयर है किसका? स्टीरी का. पेरिसाइकल में वही चीज है, डाइकॉट रूट में अलग सिस्टम होगा, मोनोकॉट रूट में अलग होगा. तो यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस विद द हेल्प ऑफ फिगर. एनाटॉमी में जब तक तुम फिगर नहीं याद करोगी यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. ये मेन फिगर है ना, दिस इज ऑल द ट्रांसफर सेक्शंस which we have to study in the laboratory. जब तुम ट्रांसफर सेक्शन लेबोरेटरी में कट करके when you will see it under the microscope you will be able to understand it much better way. ठीक. तो अब तक हमने क्या देखा? 2 layers we have studied. एक तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. यानी कि ये वाला लेयर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, बाकी ये जितना बचा है ये ग्रीन वाला पार्ट ये क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. अब सिर्फ कितना पार्ट बचा है? ये वाला छोटू सा पार्ट. ये क्या है? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. VTS. ये क्या था? GTS. ये क्या था? ETS. ETS में सिर्फ क्या था? एपिडर्मिस और स्टोमेटा. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या आया? कॉर्टेक्स आया, पेरिसाइकल आया और पिथ आया. नाउ वी विल स्टडी दिस वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम व्हिच विल इंक्लूड xylem and phloem. In the next class I suppose we will be able to study because time has already been up. Ground tissue system. Just let me complete ground tissue system with the leaves and then we will stop the class for today. So ground tissue system with respect to leaves. अब देखो लीव्स में क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का नाम चेंज हो जाता है. इट इज कॉल्ड एज मेसोफिल सेल्स एंड इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स एंड पिथ. इट इज मेड अप ऑफ ओनली पेरेनकाइमेटस सेल्स. देखो लीव्स एंड लीव्स. देखो ये भी मेसोफिल है, ये भी मेसोफिल है. अभी वी विल स्टडी कि डाइकॉट में और मोनोकॉट में कैसे अरेंजमेंट है. और मोनोकॉट में भी देखो डायरेक्ट मेसोफिल के नाम से है. तो ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ही है जो मेसोफिल का नाम दिया गया है. ओके, कमिंग बैक टू हियर. अब 2 तरह के लीव होते हैं, डाइकॉट लीव और मोनोकॉट लीव. डाइकॉट लीव्स को डॉर्सीवेंट्रल लीव भी बोलते हैं एंड मोनोकॉट लीव को आइसोबाइलेटरल लीव भी बोलते हैं. आइसोबाइलेटरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पूरे जो सेल का शेप साइज होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है और इक्वल नंबर ऑफ सेल्स होते हैं ऑन बोथ द सरफेस. अब एक्सिल और एडैक्सिल दोनों साइड काइंड ऑफ सरफेस पे इक्वल नंबर ऑफ सेल्स होते हैं. डॉर्सीवेंट्रल इसलिए बोलते हैं डाइकॉट लीव में क्योंकि ऊपर की तरफ क्या रहता है? ज्यादा रहता है अरेंजमेंट. सॉरी, ऊपर की तरफ कम रहता है और नीचे की तरफ ज्यादा रहता है. ठीक है. देन अगेन वही मेसोफिल में क्या है? डाइकॉट लीफ में 2 होते हैं मेसोफिल. ठीक है. तो डाइकॉट लीव्स में देखो 2 काइंड ऑफ मेसोफिल सेल्स हैं एंड मोनोकॉट लीव्स में मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेड और स्पॉन्जी एंड जितने भी सेल्स हैं वो सेम शेप और साइज के हैं. लेकिन मेसोफिल सेल्स ऑफ डाइकॉट लीफ इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 काइंड्स, पेलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल. अब पेलिसेड वाला क्या होता है? इलोंगेटेड होता है, स्पेस नहीं होता है उसमें और ऊपर की तरफ मिलता है यानी कि अपर एपिडर्मिस में मिलेगा. इसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा होता है इसलिए इसका कलर क्या होता है? डार्क ग्रीन होता है. सेम स्पॉन्जी वाला क्या होता है? ओवल शेप्ड होता है, स्पेसेस प्रेजेंट रहते हैं, नीचे की तरफ होता है यानी कि लोअर एपिडर्मिस में मिलेगा. क्लोरोप्लास्ट कम होते हैं लोअर एपिडर्मिस में इसीलिए लाइट ग्रीन कलर होता है. देखो फिगर से भी दिखाते हैं. दीज आर पेलिसेड. देखो इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट है और यहाँ पे देखो स्पॉन्जी मेसोफिल है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है. तो स्पॉन्जी मेसोफिल इज हैविंग स्पेस, पेलिसेड मेसोफिल इज नॉट हैविंग एनी स्पेस. ये लाइट डार्क ग्रीन है क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ है क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा इसलिए डार्क ग्रीन. नीचे की तरफ है एडैक्सियल सरफेस पे है इसलिए लाइट ग्रीन, क्लोरोप्लास्ट का नंबर कम होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. एनी डाउट इन टुडेज क्लास?